and the chapter. And before starting the chapter, we must get what is the background of the story. So let's read. In this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, had just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wells mining town of Blenley. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. So, dear students, the background of this story is that this chapter is taken from the book Citadel, which is very famous for medical practice or in the field of medical. And there is one character, Andrew Manson. Andrew Manson has recently got his medical degree and he is medical pass out, and that's why he started his job as an assistant to Dr. Edward Page in a small town of Blenley. And Andrew loves a girl whose name is Christine. And during the day, when both of them, Andrew Manson and Christine, went out, at that time there were some happenings by which Andrew became disappointed, and that's why at the evening Andrew Manson was disappointed. And there are another two characters, Joe Morgan and his wife. And when Andrew Manson returned from his meeting, he was disappointed and he saw that Joe Morgan was waiting for him. Joe Morgan and his wife had been married 20 years ago, and now they were expecting their first child. That's why for the treatment, Joe Morgan was waiting for the doctor, Andrew Manson. Is it clear? Okay. Now it is the starting of the chapter. Tough it was nearly midnight when Andrew reached Bringover. He found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. So what is the scene? सीन ये है कि when Andrew reached Beringover, तो जब एंड्रू बेरिंगोवर पहुँचते देन ही फाइंड जो मॉर्गन छोटे छोटे कदमों से चहलकदमी करते हुए उसकी वेट कर रहे होते हैं बेरिंगोवर में। वो छोटे से स्पेस में जो क्लोज सर्जरी वाला प्लेस है और जो हाउस का मीन्स घर के लिए जो एंट्रेंस है, उस छोटे से क्लोज स्पेस में वो स्मॉल स्टेप्स के साथ में जो मॉर्गन वेट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल भी फील करते हैं क्योंकि उनकी वाइफ ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम में थी, उसको पेन हो रहा था, डिलीवरी का केस था। तो जैसे ही वो एंड्रू को देखते हैं तो उनका फेस एकदम से थोड़ा सा उस पर ग्लो आ जाता है। क्योंकि अब तो वो डॉक्टर आ गए और डॉक्टर को देख के तो पेशेंट वैसे ही थोड़ा सा होपफुल हो जाता है। तो इन द सेम मैनर जैसे ही जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रू मैनसन को देखते हैं तो उनके फेस पर
रिलीफ वाला एक्सप्रेशन आता है और फिर वो कहते हैं, ओ डॉक्टर, आई एम ग्लेड टू सी यू, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, द मिसेज वांट्स यू बिफोर टाइम टू। तो जब जो मॉर्गन डॉक्टर को देखते हैं, एंड्रयू को देखते हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ में कहते हैं, ओ डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू राइट नाउ। कहते हैं कि अब आपको देख के मुझे बड़ी रिलीफ फील हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई है, बिकॉज माई वाइफ नीड्स सम ट्रीटमेंट। तो कहते हैं कि मेरी वाइफ को कुछ ट्रीटमेंट की नीड है, हालांकि उसका जो डिलीवरी टाइम है दैट इज़ नॉट राइट नाउ। कहते हैं कि वो उसका, मेरी वाइफ का जो डिलीवरी टाइम है वो अभी सही टाइम नहीं है, बट उसको बिफोर टाइम ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी हेल्प चाहिए। तो इस बात पे एंड्रयू कहता है, एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्स फ्रॉम द कंटेम्पलेशंस ऑफ हिज ओन अफेयर्स टोल्ड मॉर्गन टू वेट। देखो बेटा, यहाँ पे जो एंड्रयू आए हैं अभी अपनी बिलवड से मिलके, क्रिस्टीन से मिलके, और एंड्रयू का मूड ऑलरेडी ख़राब है और वो अपने पूरे डे के जितने भी मोमेंट्स उन्होंने क्रिस्टीन के साथ स्पेंड किए थे, जिस बात पे झगड़ा हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, उस बात को रिकॉल करते हैं और फिर मॉर्गन को बोल देते हैं अभी वेट करो। देन he went into the house for his bag, then together they set out for number 12 Blaina Terrace। तो उसके बाद में एंड्रयू अपने घर पे जाते हैं, अपना जो मेडिकल बैग है उस मेडिकल बैग को लेकर आते हैं। उसके बाद में वो दोनों लोग 12 ब्लेना टेरेस, दैट इज़ द एड्रेस, उसके लिए निकल जाते हैं। द नाइट air was cool and deep with quiet mystery, unusually so perceptive. Andrew now felt dull and listless. At that night, breeze was blowing and it was quite dull night. तो नाइट बहुत ही डल थी, इतनी डल थी कि जो एंड्रयू थे वो भी थोड़ा सा डल फील कर रहे थे, लिस्टलेस आई मीन थोड़ा सा आलस फील कर रहे थे, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि एंड्रयू को भी नहीं पता था कि जो मिडनाइट की कॉल है, मिडनाइट में उसके पास एक पेशेंट आया है जिसका ट्रीटमेंट वो करने जा रहा है, ये मिडनाइट कॉल उसके आने वाले फ्यूचर को, पर्टिकुलरली जो ब्लेनली स्मॉल टाउन है, उस स्मॉल टाउन ब्लेनली में उस डॉक्टर के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करने वाली है, वो भी नेगेटिवली। ये बात अभी तक एंड्रयू को नहीं पता थी। द टू मेन walked in silence until they reached the door of number 12, then Joe drew up short। ठीक है, तो after that both of them, Joe and Andrew, Joe Morgan and Andrew Manson, both they reached the address 12, what was the address, 12 Blaina Terrace। तो अब वो दोनों जो मॉर्गन और एंड्रयू मैनसन डॉक्टर साहब दोनों 12 ब्लेना टेरेस पर पहुंच गए हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो जो मॉर्गन थोड़ा सा स्लो हो गया है क्योंकि डॉक्टर अंदर जाएगा, पेशेंट बाहर रुकेगा। आई विल नॉट कम इन, ही सेड, एंड हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। तो उसके बाद में जो रुक के बाहर कहते हैं कि आई विल वेट आउटसाइड फॉर यू, I will not come in your clinic, or that is what is called office। तो अब कहते हैं कि वो बाहर ही वेट करेंगे, हालांकि जो जो मॉर्गन है, जो मॉर्गन की वाइफ में थोड़ा वॉइस में स्ट्रेस है, आवाज़ में थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा डरे हुए भी हैं, टेंशन में भी हैं,
बट फिर भी वो कहते हैं डॉक्टर से कि मुझे पता है आप हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे। फिर क्या देखते हैं, इनसाइड अ नैरो स्ट्रेन लेड टू अ स्मॉल बेडरूम क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प। हियर मिसेस Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved out of the room. ठीक है, तो जब वो 12 बेलेना टेरेस पे आते हैं तो वहाँ पे अब ये पाते हैं कि वहाँ पे 2 लेडीज़, एक कौन है, एक जो कि वाइफ की मदर है, कहने का मतलब जो कि मदर इन लॉ हैं, जो मॉर्गन की मदर इन लॉ हैं, जिनकी एज नियरली 70 ईयर है, जिनके जो हेयर है वो ग्रे हैं, और एक दूसरी लेडीज़ हैं जो मिडवाइफ है, पर्टिकुलरली मिडवाइफ हम लोग रेफ़र करते हैं नर्स को, हु हेल्प्स इन डिलीवरी केस। तो वो एक थोड़ी हेल्दी सी नर्स हैं। तो 2 वुमेन कौन कौन सी है बेटा, देखो, एक है जो मॉर्गन की मदर इन लॉ, मदर ऑफ हिज वाइफ, एंड सेकेंड वन है मिडवाइफ। मिडवाइफ इज रेफर्ड फॉर अ नर्स हु हेल्प्स इन डिलीवरी केस। तो दोनों लोग वो पेशेंट के साइड में बैठ के वेट कर रहे थे। तो जब डॉक्टर अंदर आए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, फिर जब बाहर गए तो डॉक्टर के एक्सप्रेशंस को देखते हैं। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर, वाह, सेड फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। अब देखो यहाँ पे बेटा एक होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर वर्ड। ठीक है, एक वर्ड कौन सा होता है बेटा, एक होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर। देखो, फॉर्मर का मतलब है फर्स्ट ऑफ द 2, 2 में से पहले वाला। अब यहाँ पे हमने 2 वुमेन की बात की है। एक हमने बोला है मिसेस मॉर्गन्स मदर, कहने का मतलब ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट हैं जो मॉर्गन की मदर इन लॉ है, एंड सेकेंड वन है मिडवाइफ, सेकेंड वन है मिडवाइफ। ये फर्स्ट हैं और ये क्या है, सेकेंड है। तो 2 में से फॉर्मर का मतलब होता है फर्स्ट वन, तो यहाँ पे हो जाएंगी मॉर्गन की मदर इन लॉ। ओके बेटा, तो अब मॉर्गन की मदर इन लॉ कहती हैं कि चलो डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए एक कप टी प्रिपेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा वेट करें। अब एंड्रयू थोड़ा सा स्माइल करते हैं, एंड्रयू स्माइल करते हैं फ्रेंकली। ही said that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. तो मॉर्गन को ये फील होता है कि जो 70 ईयर की जो वाइफ लेडीज़ है, मॉर्गन की जो मदर इन लॉ हैं, वो वाइज हैं क्योंकि 70 ईयर की एज है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सभी केसेस का, डिलीवरी केसेस का भी एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चों को बर्थ दिया है। तो वो ये फिर रियलाइज़ करती हैं कि अभी कुछ टाइम है डिलीवरी में, और कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर साहब ये कहकर चले जाएं कि वो बाद में आएंगे, और इसीलिए वो डॉक्टर साहब को टी ऑफ़र कर देती हैं। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। तो इस बात पे डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं कि मदर, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फ्रेट मीन्स वरी, तो वरी मत होइए, टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो ओनली दिस मच. The chapter will be continued in the next video. So watch this video, and after that another one which I will upload later. Thank you for watching this video.